Good morning, friends. We at Trishakti Defence Academy, Lucknow, welcome you all for the second set of current affairs topics that we'll be covering today. As you all are aware of, that the country has gone ahead with the new education policy, which has been put into place last year, and all institutions, including higher education institutes, are in the process of implementing them. Today we have with us Major retired S.K. Singh as expert on the subject, who will be making us understand the new education policy, its benefits, advantages, and what are the long-term plans for it. Before I go to Major S.K. Singh, I'll request you all to like and subscribe our channel so that mutual benefits can be all availed by you, and we, with your proper feedback, will improve on the modes of communication and our channel videos. Now a point about Major S.K. Singh. He has put in 38 years of service in Indian Army as commissioned officer. He was in the Corps of Artillery, the Regiment of Artillery, and last appointment held by him was Commandant Selection Center North. And after that, he has taken upon himself to guide, educate, and carry out proper counseling for the youngsters who are appearing for Service Selection Board. Earlier, he was doing it in online mode, and now from 3rd September this year onwards, the Trishakti Defence Academy, under his able guidance, has started working, and we are thankful to have him as our patron. Welcome to Major S.K. Singh. Thank you, Brigadier U.K. Singh. Thank you for getting me on this show. And hello, viewers. I'm quite sure the topic for today, being the new National Education Policy 2020, I mean, it is one of the hot topic which can come up during your SSB interview in the various places. It could be either in the group discussion or in the lecturate, or it could be in the interview. So you should be aware about what are the basic things, and whatever we'll be discussing, if you can note down those things and talk only about that much, आप अगर उतने भी points बोल देंगे, I think वो आपका पूरे you'll be doing full justice to the topic or to the knowledge which we have to actually discuss. So before that, I'll now let's start the discussion on this. Now, as you all are aware of, that the nation has gone ahead with changes in the education policies, and the new National Education Policy is termed as NEP 2020. Now, first question which comes to our mind is that when was the last policy made and implemented? S.K. Singh, please take on this subject. Yeah, जहाँ तक पिछली पॉलिसी का सवाल है, you see the previous policy existed was of 80s vintage. ये actually इसका formulation शुरू हो गया था in the year of 1986, but by the time it was implemented, it worked out to be 1992. इसीलिए 86/92 उस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं, and so that was the last time. और उसके बाद almost now it is काफी साल हो गए हैं, almost 30 years now. So there was a need for a change because there is a lot of advancement in the technology side and other side. That's why the previous policy was of 86 vintage, and ये जो अभी आया है ये National Education Policy NEP 2020. Now coming to our next question is, what was the requirement for having amendment and issuing of new education policy? You see, viewers, एक चीज यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी. You see, हम लोग why this education is there, why it has to keep changing.
हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? सो दैट वी गेट अ जॉब आउटसाइड. Once we talk outside, that means any education system should be able to meet the demand of the companies of the industry. अब इंडस्ट्री जो है इट इज गोइंग अंडर फोर्थ रेवोल्यूशन, जिसको कि हम इंडस्ट्री 4.0 भी बोलते हैं. इंडस्ट्री 1 था जब वो स्टोन एज और मेटल एज का जमाना था, एंड 2 आया जबकि मशीन्स आ गई, 3 आया व्हेन दी ऑटोमेशन टुक प्लेस, कंप्यूटर्स एंड ये सारे आ गए, एंड फोर्थ हैव कम बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ है. सो रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हैव चेंज्ड, accordingly the requirement of the education also changes. So hence, keeping in mind the requirement of the industry 4.0, this you can say indirectly this is also education 4.0 policy. So there was a need to change because of the technology की इतनी advance हो चुकी है, and so our education should be such कि आप हमारे जो बच्चे हमारे जो youth है, they should be able to cope up the basic requirement of the industry. Thank you very much. And next question which comes to our mind is what this new education policy aims at. What is the aim of this policy? देखिए ये समझना जरूरी है. व्हाट इज द एम ऑफ द पॉलिसी? एम ऑफ द पॉलिसी इज एनईपी 2020 इज टू डेवलप द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इन सच अ वे सो दैट बाय 2040 वी आर सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड. और उसमें ये है विद द हाईएस्ट वेटेज जो दिया गया है, इक्विटेबल एक्सेस टू हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, सबको बराबर का तकरीबन एजुकेशन हो सबकी, for all the learners regardless of their social and economic background. So this is the overall aim of the new education policy or the national education policy 2020. अभी हम सिद्धांतों पर आते हैं. तो जो नई पॉलिसी है एनईपी 2020, ये किन सिद्धांतों पर इनको बेस किया गया है? कृपया थोड़ा प्रकाश डालें इस पर. देखिए सबसे पहले आई विल लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन दी ब्रॉड प्रिंसिपल. हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बाद में देख सकते हैं. मोटा मोटा जो प्रिंसिपल है, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट, उसके बाद मैं उसको एक सेंटेंस के रूप में पूरा मैं कवर कर दूंगा. सबसे पहली चीज है, प्रिंसिपल है, इसका सिद्धांत है कि आपको एज अ गुड ह्यूमन बीइंग बनाना, गुड ह्यूमन बीइंग बनाना, जिससे कि आपकी जो थिंकिंग है वो रैशनल होनी चाहिए, आपके जो एक्शन हैं वो रैशनल होने चाहिए. साथ ही आपके अंदर यू मस्ट हैव पजेस कंपैशन एंड एम्पैथी होनी चाहिए आपके अंदर. और इसी के साथ साथ आ जाता है करेज एंड रेजिलियंस आपके अंदर होनी चाहिए. और चूंकि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो रही है तो साइंटिफिक टेम्परामेंट भी होना चाहिए, so that you are able to use this science and technology into your workforce में. और जब ये होगा, और ये तभी आप कर पाओगे अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, आपके माइंड को टिकल करना, आपके माइंड को क्रिएटिविटी आपके अंदर जागरूक करना. तो ये सारे छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं. अगर इसको मैं एक सेंटेंस में मैं कवर करूं इंग्लिश में, तो वो होगा बेसिकली टू डेवलप गुड ह्यूमन बीइंग्स capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific tempo होना चाहिए, and creative imagination with sound ethical values. हमारे जो कल्चर है भारतीय सभ्यता, उसको भी नहीं भूलना है, उसको भी इसमें जो है ढाला गया है. तो ये है मोटा प्रिंसिपल अंडर विच इट हैज बीन बेस्ड. Now coming to, as you mentioned, what is the fundamental principle of NEP? Could you please throw some light on? हाँ, अब ये तो हो गया ओवरऑल यू कैन से प्रिंसिपल, बट जो मेन मूल आधार क्या है, मूल सिद्धांत क्या है और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं. देखिए सबसे पहली चीज आ जाती है फॉस्टरिंग यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट. हर स्टूडेंट की अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है, उसको उजागर करना, उसको उसी के बेस पर उसका हुनर बढ़ाना, ये सबसे पहली चीज. सेकंड है अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी. फाउंडेशनल लिटरेसी की जब हम बात करते हैं कि एटलीस्ट हर बच्चा क्लास 3 तक जो है स्ट्रांग उसकी पढ़ाई होनी चाहिए. इफ द बेस इज स्ट्रांग,
ऑटोमेटिकली उसके फिर आगे वो पढ़ने में भी अच्छा होगा। सो इसको हम बोलते हैं अचीविंग फंडामेंटल लिटरेसी बाय क्लास 3। तीसरी चीज आ जाती है कि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए टू चूज एनी पाथ एज डिजायर्ड बाय एनी कैंडिडेट। दे शुड नॉट बी एनी हार्ड सेपरेशन बिटवीन, लेट्स से ये ह्यूमैनिटीज का है, ये साइंस का है। मोर और लेस सब्जेक्ट्स, चाहे आप ह्यूमैनिटीज में पढ़ें चाहे आप साइंस में पढ़ें, वो तकरीबन तकरीबन सेम होने चाहिए। एक आध सब्जेक्ट का स्पेसिफिक टू दैट, जैसे मेडिकल है तो स्पेसिफिक टू दैट हो सकता है, लेकिन जो बाकी जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो चाहे ह्यूमैनिटीज हो, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और इसमें करिकुलम एंड द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी सबको पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वोकेशनल एंड एकेडमिक पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। चौथी चीज आ जाती है इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, एक होलिस्टिक एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं कि ऑल राउंडर एक स्टूडेंट्स को बनाना, तो वो भी इसमें जो है केटर किया गया है। इसके जो जो मूल सिद्धांत और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। एंड देन आ जाता है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपने देखा होगा अगर आपको किसी भी चीज का कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया है, तो आपको आगे चल के उसके अगर कोई और जटिल उसकी पढ़ाई जब होगी तो वो आपको समझ में नहीं आएगी उतने अच्छे से। तो एक जो उसका कंसेप्ट बिल्डिंग जो है, ये एक सॉलिड इसको करना है, ये भी एक मूल प्रिंसिपल है। एंड इसके बाद आ जाता है क्रिएटिविटी। एज आई हैड टोल्ड यू इन द प्रिंसिपल्स में, जो मोटा प्रिंसिपल था कि क्रिएटिविटी यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग एक बच्चे के अंदर, उस चीज को जो है इसको डेवलप करना। देन प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। हमारे बच्चे जो जो गांव में है, अलग अलग यहाँ पर भाषाएं हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग रिवाजें हैं, तो उनको क्यों, व्हाई शुड दे लैग बिहाइंड एज पार्ट ऑफ द एजुकेशन इन द एट द हाईएस्ट लेवल। तो उनको भी इसीलिए इसको मल्टीलिंगुअल बनाया गया है। एंड और नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है, उसका अभी तक शिक्षा में इतना ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा था। अब उसको जो है किस तरीके से यूज करना, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज द नेक्स्ट पॉइंट। और इसके बाद आ जाता है रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। एंड फिर है फुल इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव ऑफ द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। इसको मैं पहले भी समझा चुका हूं। और साथ ही में दे नीड टू हैव सिनर्जी इन करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि सेम सेट ऑफ एजुकेशन अक्रॉस द नेशन उन सब में होना चाहिए। एंड और एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क, यानी कि R&D कह लीजिए। एक क्रिटिकल माइंड डेवलप जब होगा तो आपके अंदर रिसर्च करने की भावना, तो वो एक आउटस्टैंडिंग रिसर्च निकल के आनी चाहिए किसी भी चीज के ऊपर। तो उस पर भी इसमें महत्व दिया गया है, उसको भी एज अ प्रिंसिपल लिया गया है। और लास्ट आ जाता है कि टीचर्स एंड फैकल्टी दे हैव टू बी एट द हार्ट ऑफ द लर्निंग ऑफ द होल प्रोसेस, क्योंकि उनको आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। तो ये है मोटे मोटे, यू कैन से दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज बेस्ड। अब अगला सवाल ये आता है कि व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर और द स्टेजेस व्हिच एनईपी हैज टू गो थ्रू। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। यू सी, ये तो सारा अभी तक थ्योरी पार्ट तो हो गई, लेकिन इसको ऑन ग्राउंड कैसे इम्प्लीमेंट होगा। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द न्यू वन इज बेस्ड ऑन 3+2+3+3+4। अभी मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से आई जस्ट एक्सप्लेन इन डिटेल। जो पहला सेट है 3+2, इसको हम बोल रहे हैं, जिसका अभी आई जस्ट डिस्कस दैट फाउंडेशनल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जिसको हम बोल रहे हैं फाउंडेशनल स्ट्रक्चर। यानी कि पहले 3 साल आपके 3 इयर्स से लेके एक बच्चे के टिल 6 इयर्स तक, उसको हम प्री स्कूल बोलेंगे। एंड उसके बाद जो +2 वाला है, यानी कि क्लास 1 एंड क्लास 2, एज 6 to 7, तो ये दोनों मिला के जो है फाउंडेशनल स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फिर +3। अब वो +3 क्या है, दैट इज कॉल्ड द प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि एक बच्चे का फ्रॉम क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक का, जिसमें एज ग्रुप हो जाएगा 7 to 10 और 8 to 11 समझ लीजिए। 8 to 11 दैट इज द नेक्स्ट स्टेज स्ट्रक्चर में। उसके बाद आ जाता फिर से +3। वो +3 क्या है, दैट इज द मिडिल स्टेज, यानी कि 3 साल का क्लास 6, 7 एंड 8, दैट इज द मिडिल स्टेज, जिसमें एज ग्रुप ले लीजिए फ्रॉम अबाउट 11 to 14
तक का एज ग्रुप होगा। और लास्ट आ जाता है +4 विच इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्टेज। इसमें क्या है कि क्लास 9, 10, 11, 12 इसको आप ग्रुप कर दें तो ये एक्चुअली सेकेंडरी स्टेज आ जाएगा, जिसको 4 साल का एंड एज ग्रुप मिनिमम 14 साल भी हो सकता है एंड मैक्सिमम आप समझ लीजिए 18 ईयर्स। जो उतने स्ट्रैगलर्स हो जाते हैं तो वो 18 साल में भी इसको जो है पूरा कर सकते हैं। तो ये 4 ग्रुप है मोटे मोटे कि 3+2 फाउंडेशनल स्टेज, फिर नेक्स्ट +3 हो गया इसका प्रिपरेटरी स्टेज, फिर नेक्स्ट +3 हो गया मिडिल स्टेज एंड नेक्स्ट +4 हो गया सेकेंडरी स्टेज। अब सेकेंडरी स्टेज को थोड़ा सा मैं इसको एक अलग से समझाना चाहूंगा। सेकेंडरी स्टेज यानी कि आपकी क्लास 9, 10, 11, 12। अब इसमें क्या होगा कि इसमें कोई हार्ड सेपरेशन नहीं है इन द करिकुलम ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या ह्यूमैनिटीज में या साइंस में या मैथ्स में। मोर और लेस सब्जेक्ट्स मोर और लेस जो है सो कॉमन रहेंगे। ईच स्टेज में इसको हो सकता है कि इन 4 साल को सेमेस्टर सिस्टम में भी अगर फायदा लगा तो सेमेस्टर सिस्टम में भी ब्रेकअप किया जा सकता है, मतलब टोटल ऑफ 8 सेमेस्टर्स। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दी गई है इसमें रीजनल लैंग्वेज को दी गई है। रीजनल लैंग्वेज को देने के लिए आपको नेचुरली यू विल हैव टू रिवाइज ऑल द बुक्स, योर बुक्स हैव टू बी इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज। और इसके अलावा इंपॉर्टेंस है हर स्टेज पर स्किल डेवलपमेंट, जो कि हम एडवांटेज के हेडिंग में हम देख सकते हैं। बट मोटा मोटा जो स्ट्रक्चर है 3+2 +3 +3 +4 फाउंडेशनल स्ट्रक्चर, प्रिपरेटरी स्ट्रक्चर, मिडिल स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब अगला सवाल जो आता है कि राष्ट्रीय स्तर पर व्हाट आर द बेनिफिट्स और यू कैन से टेक अवेज ऑफ दिस पॉलिसी। टेक अवे यानी कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस पॉलिसी, या आफ्टर ऑल फायदा क्या होगा पूरा सिस्टम को चेंज करने का। देखिए कि बहुत मोटे मोटे ये है, एक तो मैंने बात करी थी द रीजनल लैंग्वेज में। तो जो भी हमारे बच्चे जो 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 गांव में हैं उनको रीजनल लैंग्वेज, उनको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है या हिंदी में प्रॉब्लम है, तो वो जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। एंड नेचुरली इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि ऑल द बुक्स हैव टू बी इन द बाइलिंगुअल में, यानी कि उनके रीजनल लैंग्वेज में भी बुक्स को अवेलेबल करना पड़ेगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर दिया गया है। उसका फायदा ये रहेगा कि लेट्स से इफ एनी ड्रॉप आउट्स अगर कुछ हैं आपके, जो ईच स्टेज मैंने आपको पहले समझाए थे कि मान लीजिए फाउंडेशनल स्ट्रक्चर के बाद कोई ड्रॉप आउट हो गया, तो उस लेवल तक का जो भी उसके अंदर स्किल डेवलप किया जा सकता है वो स्किल डेवलपमेंट की उसके अंदर ट्रेनिंग बच्चे को दी जाएगी और साथ में वो सर्टिफिकेट रहेगा, जिससे कि उस स्किल का उपयोग वो जो है ही कैन गेट अ जॉब आउटसाइड इन द फैक्ट्रीज एंड द इंडस्ट्री। ऐसे ही मान लिया जाए प्रिपरेटरी स्टेज पर कोई ड्रॉप आउट हुआ, मिडिल स्टेज पर हुआ, सेकेंडरी स्टेज पर हुआ, हायर एजुकेशन के लिए नहीं गया, तो हर स्टेज के स्किल्स जो है अलग अलग दिए गए हैं। वो स्किल्स दो स्किल्स विल बी टॉट टू द स्टूडेंट्स एंड एनीबडी who drops out at whichever stage he'll be able to utilize that skill to get a job proper outside। अब इसमें प्रश्न आ जाता है कि बोर्ड्स का क्या होगा। इसी जो बोर्ड होते हैं आजकल हमारे 10th और 12th में, तो ये एग्जिस्टिंग बोर्ड्स आई मीन दे विल कंटिन्यू। एंड एक और जो एडवांटेज लास्ट वन आई कैन प्रिज्यूम इज दैट कि एग्जाम्स को और इजी किया गया है। इट हैज बीन मेड लेस इम्पोर्टेंस, मतलब आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। पहले होता था कि भाई जितना आपने मेमोराइज किया वही आप उगल देते थे, तो अब वो चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि एग्जाम्स इजी होंगे तो बच्चों के ऊपर उतना स्ट्रेस भी नहीं आएगा। तो ये मोटे मोटे एडवांटेजेस हैं ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी। तो आई एम क्वाइट श्योर आपके बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ऑल दीज थिंग्स। तो अंत में मैं आपको एक खबर भी बताना चाहूंगा कि जो आईएएस अधिकारी जो सेक्रेटरी शिक्षा विभाग थे श्री अमित खरे, जिनके समय पर ये एनईपी 2020 को रोल आउट किया गया था, उनको भारत सरकार ने 2 साल का एक्सटेंशन दिया था और आज या कल में ही उनको प्रधानमंत्री सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। तो ये शिक्षा विभाग के लिए एक अच्छी खबर है और श्री अमित खरे जो हैं इस बारे में जैसा आपको विदित है कि काम करते रहेंगे और ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी के लिए बहुत ही अच्छा होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ he will be helpful in actually implementation on ground, क्योंकि पॉलिसी तो बन गई है 2020 की, अब इसको लागू किया जा रहा है और लागू करने में by the time it rolls out on the ground it will take 3, 4, 5 years. So he will be quite helpful in that, because जिसने बनाया है वही implement करेगा, तो it will be quite smooth and easy take over. तो इसी रिमार्क्स के बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कुछ फायदा होगा। और कोई आपके सजेशंस हैं, कुछ ऐसे करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं, उनको आप कमेंट्स में लिखकर भेजें। और हमारा जो मेल आईडी और बाकी चीज़ें हैं वो यूट्यूब में आपको दिए गए हैं। और मैं लास्ट में जनरल साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपना रिमार्क्स देकर इस आज की वार्ता को समापन तक ले जाएं। So viewers and the friends and girls and boys, I hope you have been able to understand what are the basic points. अगर ये if this topic comes to you as a lecture, or it comes during the discussion in the group discussion in the GTU, or let's say if asked in the interview, I hope you have been able to grasp. आपको समझ में आ गया होगा क्या मोटे-मोटे points हैं, उन पर बोलना है, उनको amplify करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको काम है कि आप you should be able to cover most of these finer points or the aspects. What is the main structure, what is the principle, इसका फायदा क्या है, ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो आई एम क्वाइट श्योर you will get good marks in any of these tests. Thank you very much. Thank you, sir.